ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਗੀਤਾਂ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭਜਨ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਘਾਹ ਦੇ ਟਿੜ ਫੜ ਲਏ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾਊਦ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਂਗੇ 6 ਅਧਿਆਏ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਔਰ 6 ਦੀ 4। और फिर उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ। हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ? ਸਜ਼ਾ। ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਹੈ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀ ਉੱਠੇ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ? तौबा करके ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ YouTube ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਉਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਪਤਿਸਮਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਨਾਮਦਾਨ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ नामदान। ਨਾਮਦਾਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੀਨ। ਲੋਕੀ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? तौबा करनी। ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ। ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। ਕੀ ਲਵੇ? ਬਪਤਿਸਮਾ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ। ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹ ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ रहा है? ਆ ਰਹਾ ਹੈ। अच्छा, हालेलुया। जे तौबा कर ਲਈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? दफना पैंदा। जो मर जाता क्या करना पड़ता उसे? दफनाई, दफनाई करना पड़ेगा। हिंदी जी बोल देना मैं, चलो। हालेलुया। जो पश्चाताप करेगा वो संसार के लिए क्या होगा? मर गया। और मरे हुए को दफनाना बड़ा जरूरी है। और ये आत्मिक बात है। दुनिया की भाषा बोले यार ये क्या बात बोल रहे हो, अब तेरे पल्ले नहीं पड़ रही तो क्या करें? बाइबल कहता है जो पाप करता है अगर वो जीवित है तो भी वो मरे हुए के बराबर है। आमीन। आमीन। लेकिन अगर पाप से तौबा कर ली तो फिर वो मर गया, और मरे हुए को दफनाना पड़ा। जरूरी। अच्छा एक बात ध्यान सुनना, तौबा अच्छे से करना, मरना बड़ा जरूरी है। अगर अच्छे से नहीं मरे तो दफना दिया तो भी गड़बड़ है, क्योंकि मरा ही नहीं पूरी तरह से दफनाने का, फिर कल को कब्र खोद के फिर बाहर आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए तौबा करके मरना बड़ा जरूरी है। और इसलिए फिर दफनाना। बपतिस्मे का मतलब है पानी के अंदर डबोना और फिर निकालना। उसका यीशु मसीह के साथ क्या मतलब है? यीशु मसीह का सलीब के ऊपर मरना और कब्र के अंदर रखना और कब्र में से, मुर्दों में से बाहर आना, जी उठना। हालेलुया। इस बपतिस्मे का मतलब उसके यीशु मसीह के साथ जोड़ा हुआ है। यीशु के साथ मारे जाना, यीशु के साथ गाड़े जाना और यीशु के साथ जी उठना। तो बोलो क्या करना? जी उठना। जोर से बोलो, जोर से। जी उठना। हम क्या है मसीह में? जी उठे। जिंदा। क्या है? जिंदा। जिन्होंने मन फिरा के पश्चाताप करके बपतिस्मा ले लिया है वो मसीह में क्या है? जिंदा। जोर से बोलो। जिंदा। और अगर हम जिंदा हैं तो किसी मुर्दे का मेरे ऊपर क्या अधिकार है? फिर कोई नहीं। ये अगर समझ में आ गई बात तो समझ लेना आप फतह पा चुके हैं। हालेलुया। हम क्या हैं? जिंदे। जी उठे, जिंदा है। और मुर्दे मेरा कैसे बाजू पकड़ सकते हैं यार? समझ में आ रही मेरी बात? ध्यान सुनना। दुष्ट आत्मा हमें सता सकती है फिर अगर हम जी उठे तो? जिंदा लोगों को दूसरा पकड़ती है कि नहीं? नहीं पकड़ सकती, क्योंकि हम मसीह में जी उठे हैं। हम मसीह के द्वारा जी उठे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमने 8:1 में पढ़ी है, अब मसीह यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। एक बड़े पिछले दिनों में मैं एक फोन के ऊपर सुन रहा था, बड़े बाबा जी, उन्होंने बोला बाइबल कहती है आदि में क्या था? शब्द, और शब्द परमेश्वर के, और शब्द ही, परमेश्वर। और सब कुछ शब्द के द्वारा। तो मैंने सोचा वो आगे की लाइन बोलेगा, लेकिन वो बोला नहीं आगे की लाइन। वो अपने मतलब की बात बोलते बाइबल में से। आगे जाके क्या लिखा है? वही शब्द जो है वो देहधारी हो गया, उसको ही बोला ना। हालेलुया। हालेलुया। अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तुम किसी का वचन इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आगे की बात पढ़ो, तुम्हारा भी दिमाग खुल जाएगा। अब वो शब्द नहीं रहा, अब वो परमेश्वर के साथ नहीं रहा, अब वो सिर्फ परमेश्वर नहीं रहा, अब वो मसीह के रूप में, यीशु मसीह के रूप में धरती के ऊपर देहधारी हो चुका है। हालेलुया। वो सलीब के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया, और शब्द को कोई मार नहीं सकता। इसलिए मुर्दों में से वो क्या हुआ? जी उठा है। हालेलुया। ये बात भी बोलना है। हालेलुया। ये बात ठोक के बोलना है। हमें फक्र है, हमें घुमंड है यीशु मसीह के ऊपर कि वो मुर्दों में से जी उठा। आए। तो बहुत दुनिया में पीर, पैगंबर, औलिये, नौलिये, जो मर्जी आए हैं, सारे आए
और यहीं पे दफना दिए गए। यीशु को भी दफनाया गया, लेकिन यीशु दफनाया हुआ नहीं रहा, वो मुर्दों में से जी उठा। ये मसीह लोगों के लिए एक अलग बात है। हालेलुया। हालेलुया। ये मसीह लोगों के लिए एक ऐसी बात है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जिसका कोई जवाब नहीं है। यहाँ पर आके शैतान, दुष्ट आत्माएं, सारी ख्याली दुष्ट आत्माएं, विचारों की दुष्ट आत्माएं, भावनाओं की दुष्ट आत्माएं, सारी आकर के हमारे पांव के नीचे बैठ जाती। हालेलुया। हालेलुया। और वो यीशु जी नहीं उठा केवल, उसके द्वारा मैं और आप भी जी उठे। अब जिंदा है। हालेलुया। 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 अगर हम जिंदा हैं तो किसी भी दुष्ट आत्मा का मेरे शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आइए एक वचन पढ़ते हैं और अभी आगे पढ़ देंगे। दूसरा ग्रंथिया उसका 10वां अध्याय 4 वचन से लेके पढ़िए। देखिए थोड़ा सा उसमें जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा 10 का 10 4 से लेके पढ़ लीजिए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, हाँ। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हाँ आगे। इसलिए हम कल्पनाओं का और हाँ। हर एक ऊंची बात का हाँ। जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हाँ। खंडन करते हैं, हाँ। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। 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 जोर से बोलेंगे आमीन। हालेलुया। अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो जी उठे हुए लोग हैं उनके बारे में। अब जो जी उठे हुए लोग हैं, ध्यान से सुना मेरी बात। हेलो, हालेलुया। क्या करना? ध्यान सुना, ध्यान से। अब जो जी उठे हुए लोग हैं उनके लिए कहा गया है जो आपके पास शस्त्र हैं वो जिस्मानी नहीं है, शारीरिक नहीं है, लेकिन बड़े बड़े किलों को ढा देने के लिए बहुत शक्तिशाली है। हालेलुया। आमीन। वो शस्त्र कोई हमारे पास तोप नहीं है। क्या नहीं है? तोप नहीं है। गोले दागने वाली तोप नहीं है, कोई AK-47 नहीं है, कोई रिवॉल्वर नहीं है, कोई तलवार नहीं, कोई चाकू नहीं है। वो क्या है? सबसे बड़ा क्या है हथियार हमारे पास? वचन। प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। जोर से बोले, क्या है? प्रार्थना। सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना करने के द्वारा मैं और आप सब कुछ बदल सकते हैं। बाइबल इसके साक्षी है। प्रार्थना करने के द्वारा हमारा खुदा हमारे बीच में आ जाता है। प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग में बैठा हुआ जो परमेश्वर है उसका सिंहासन हिलना शुरू हो जाता है। प्रार्थना करने के द्वारा सारे गढ़ टूटने शुरू हो जाते हैं, और प्रार्थना के साथ साथ परमेश्वर का वचन भी हमारा हथियार है। क्या है? परमेश्वर का वचन हमारा है? हथियार है। जब वचन बोलेंगे उसका कोई तोड़ किसी के पास नहीं होगा, दुष्ट आत्मा के पास भी नहीं है। वो हमें भरमाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए बोलता है वचन। पता है आपको? चलो हम तो इंसान हैं, है ना? जब यीशु मसीह धरती के ऊपर आए, यीशु मसीह को परखने के लिए भी शैतान आया, और पता उसने कहां से परखा? वचन से। कहां से परखा? वचन से। क्या लिखा है? उसने कहा तेरे बाप के वचन में ऐसा लिखा है, तेरे बाप ने ऐसे कहा है, अगर तू इस मंदिर के किनारे से नीचे कूद जाए तो तेरे परमेश्वर के जो स्वर्गदूत हैं वो तुझे संभाल लेंगे, तेरे पांव को ठेस लगने नहीं देंगे। ठोकर लगने नहीं देंगे। चोट लगने नहीं देंगे। तो क्या यीशु मसीह को कूद जाना चाहिए वहां से? नहीं कूदा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह शैतान की बात मानने के लिए नहीं आया यहाँ पे। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को अपनी बात मनवाने के लिए आया है। प्रभु यीशु ने वचन का इस्तेमाल किया वहां पे, ने कहा है तू अपने परमेश्वर को ना परखना, ये भी लिखा है। हालेलुया। अगर आप 4 अध्याय पढ़ेंगे मत्ती में, लूका में, उसमें मिलेगा ये सारी बातें। आमीन। वो कहता है तू अपने परमेश्वर को नहीं परखना। फिर उसने कहा जो दुनिया में है
शानो शौकत ऐश प्रस्ती सारा कुछ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ एक बार यीशु को कहा उसने, एक बार मुझे झुक के प्रणाम कर दे, सारा कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा ये भी लिखा है, तू सिर्फ और सिर्फ क्या, सिर्फ बोलो क्या, तो सिर्फ अपने परमेश्वर के सामने ही झुकना। हालेलुया। ये बाइबल कहती है एक ही खुदा है, उसी के सामने झुकना। इसलिए मसीह लोग किसी और के सामने नहीं झुकते हैं। आपको परेशानी क्या है? अगर बाइबल की बात हम लोग मानते हैं तो परेशानी है क्या? ये बात शैतान को समझा दो, एक ही खुदा है, उसी के सामने झुकेंगे, तेरे सामने झुकेंगे नहीं। एक ही बार मरना है ना, तो मसीह के लिए मरेंगे। हालेलुया नहीं बोल रहे? मरने से डर लगता है कि जीने से डर लगता है? अरे अब तो वचन कहता है जीना मसीह में फायदेमंद है और मरना, जोर से बोलो, और चाहे जिए तो भी हमारे पक्ष में, मर जाए तो भी हमारे पक्ष में। हालेलुया, तो भी हमारे ही पक्ष में है। इसलिए कोई कुछ भी करता रहे, पता है लोग हमें दबाते हैं, रोकते हैं, कारण पता क्या है? उन्हें पंजाबी कहना एल्दा कुकड़ नहीं आता, उन्होंने पता क्या होता, गाला करनिया आउंदियां, तलवारा चकनियां आउंदियां। वचन की बात आती है कोई आप लोगों को, वो सुनाओ, वो समझाओ, लोगों के मन परिवर्तन करो, वो भी तलवार से नहीं, परमेश्वर के वचन से। हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है हमारे युद्ध के हथियार कौन से नहीं है? शरीर के। कभी कभी मसीह लोगों ने तलवार उठाई? कभी किसी ने गाली दिया? अब थोड़े दिन पहले वीडियो में एक पास्टर जी को चपेड़ा मार रहा था, वो आगे से ऐसे ही रहता है यार क्या बात है ना? उस बंदे को अप्रिशिएट करने को दिल कर रहा था ना? वो मेरे पास तो है ना, फूलों के हार पे हार डालते रहते, उसको इतना स्वागत करते। प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। अरे फौरन से अंग्रेज आया, उसके 2 लड़कों को उसको गाड़ी में बंद करके जला दिया। ये लोग तमाशा देख रहे थे। उसकी पत्नी क्या बोल रही? प्रभु जलाने वालों को माफ कर। शर्म करो यार, ये शिक्षा आपके पास क्यों नहीं है? ये हथियार आपके पास क्यों नहीं है? आप तो तलवारों के साथ न्याय करते, गालियों के साथ न्याय करते, लेकिन परमेश्वर जब न्याय करता है वो तख्त पलट के रख देता है। हम उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। हमारा दिन जब आएगा आप देखोगे, बाइबल कहती है खरबों लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं, खरबों लोग दुआ में बैठे हुए हैं। इस समय भी कहीं ना कहीं लोग घुटनों के बल बैठ के दुआ कर रहे हैं, खुदा जल्दी आ जा, हमें यहां से ले जा, ये दुनिया रोज पीड़ा देती है। लेकिन एक ही कारण है, वही परमेश्वर ये इंतजार भी कर रहा है। अभी तक तुझे मारने वाले ने तौबा नहीं की है, अभी तक तेरे ऊपर तलवार चलाने वाले ने मन नहीं फिराया है। मैं नहीं चाहता हूं ये नरक में जाए, इनको भी स्वर्ग में बुलाना है। हालेलुया। देखिए कितने अच्छे हथियार है हमारे। हमें मारने वालों के लिए दुआ करने के लिए कहा जाता है, इसके लिए प्रार्थना कर। जो मेरा दुश्मन है, परमेश्वर कहता है इसलिए प्रार्थना कर, ये तेरा भाई बन जाए। क्योंकि जब तुम यीशु को ग्रहण करोगे, परमेश्वर के पुत्र बन जाओगे, तो फिर हम भाई बन जाएंगे। चाहे तूने मेरे हजारों भाइयों को मारा हो, फिर भी तुझे भाई ही मानना पड़ेगा। हमें यीशु की खूबी बताऊं, यीशु मसीह ने आतंकवादियों को बदला है, नहीं बदला है? हजारों लोगों को बदला है। यीशु मसीह ने नक्सलवादियों को बदला है, बदला है। यीशु मसीह ने हालेलुया गुंडे लोगों को बदला है, हालेलुया। यीशु मसीह ने धंधा करने वाली बहनों को बदला है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने जो नशा करने वाले, नशा बेचने वाले लोगों को बदला है। यीशु मसीह ने कट्टर लोगों को बदला है। यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को बदला जो टेंट को चलती मीटिंग में आग लगाने वालों को यीशु ने बदला है और आगे बदलेगा। आमीन। और हमें ये वहम नहीं है, हमें कोई शक नहीं है, हालेलुया। हम ये दुआ करते हैं कि तू लगा आग, तू बदलेगा।
तो वो बदलेगा, क्योंकि बाइबल क्या कहती है पता है? यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं, काश कि अब तक वो लग चुकी होती। आमीन। आमीन। वो आग पता है मतलब क्या आग का? जब आग लगाने वाला मसीह में आएगा वो प्रभु की गवाही देगा, मैं मारने वाला था आज बचाने वाला बन गया। तू तो आज काम शुरू करना ये किया है, बाइबल में हजारों साल पहले हुआ है। प्रभु का बंदा था जिसका नाम पौलुस था, उसका पूरा नाम शाऊल था, वो कलीसिया को मारता था, वो जान लेता था, बाद में प्रभु ने उसे बदल दिया, वो हजारों लोगों को बचाने का कारण बन गया। ये उसकी गवाही है। और राजा के सामने खड़ा कर बोलता है पहले मैं मारने वाला था, पहले को कत्ल करता था, मसीह लोगों को परेशान करता था, अब परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है, अब मैं लोगों को मसीह में ला रहा हूं। हालेलुया। इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मारते हैं मारो यार, जितना ज्यादा मारोगे उतना ज्यादा हम बढ़ेंगे। हालेलुया। ये नीति नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। क्या है? क्योंकि वो मारने वालों को तंग नहीं करता है, वो मारने वालों को उद्धार में ले आता है। जिस दिन मोदी के ऊपर दया हो गई वो घुटने टेक के पश्चाताप करेगा। बहुत सारे मंत्री शंत्री सारे बाइबल के वचन बोलते, पता है बाइबल का बड़ा प्रचार करते हैं वोट लेने के लिए। कोई भी हो, किसी पार्टी का भी हो, बाइबल का प्रचार करेंगे। ऐसे प्रचार करने से हम मसीह में आपके वोट दे देंगे आपको? ऐसे तो बहुत शैतान वचन बोलते नहीं बोलता है, और हमसे ज्यादा आपसे ज्यादा वचन शैतान जानता है, तो उसको वोट दे दे, उसके सामने झुक जाए? नहीं, आप करने वाला काम करो, वोटें आपको तब मिलेंगी। आप लोगों को उठाओ, हालेलुया, वोटें आपको तब मिलेंगी। हालेलुया। मेरा वो टॉपिक नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं हमारे जो हथियार हैं वो दुनियादारी वाले नहीं है। हमारा हथियार प्रार्थना है, वचन है, और तीसरा है उपवास। क्या है? उपवास के साथ प्रार्थना भी है, और जब उपवास रख के प्रार्थना करेंगे तब भी सब कुछ हिल जाएगा। आमीन। आप इस बात को समझ लें, दिलो दिमाग में बिठा लें कि परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा लोगों को बदलना। परमेश्वर चाहता है, आपको चुना इसलिए है कि आपके द्वारा आपके पड़ोसी को, आपके घर के लोगों को बदलना। आप कोई मामूली लोग नहीं है। आप अपने आप को बेवकूफ मत समझो, अनपढ़ मत समझो, गवार मत समझो, ये मत समझो कि मुझे बोलना नहीं आता। नहीं, यू आर द स्पेशल। आप उन करोड़ों लोगों में से अलग किए हुए लोग हैं जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की। क्या नहीं? हेलो हेलो। एक उदाहरण देखता हूं। मां के गर्भ में बच्चा ठहरने से पहले हजारों नहीं लाखों बच्चे होते हैं, उनमें से एक ही गर्भ के अंदर ठहरता है, बाकी सारे क्या होते हैं? खत्म है। बाकी सारे क्या हो जाते हैं? मर जाते, खत्म हो जाते। बस समझ लो आप ठहर गए, आप मसीह में आगे, बाकी नाश होने वाले हैं। हालेलुया। आपको मसीह ने चुन लिया। ये तो बात समझते हो सब लोग? हालेलुया। जो मसीह में आ गया समझ लो बच गया, वो जिंदा हो गया है, उसके अंदर जीवन आ गया है। अब उसके ऊपर शैतान का, अधोलोक का और दुष्ट आत्माओं का कोई हक नहीं, अधिकार नहीं, प्रभुता नहीं है। हम आजाद किए हुए लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु के नाम की महिमा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, और प्रचार करते थे, प्रचार करते हैं और प्रचार करते रहेंगे। ये ही प्रचार करेंगे कि एक ही खुदा है, उसके सामने झुकना है बस। और वो भी ऐसे नहीं मत्था टेकेंगे जमीन के ऊपर गिर के, वो भी अंदर से झुकना है। कहां से? अंदर। कहां से? अंदर। वो सर नहीं झुकाना भाई, उसके सामने दिल से झुकना है। सर झुकाने से दुनिया देखती हो नीमा हो गया, नहीं, दिल झुकाओ, परमेश्वर देखे दुनिया ना देखे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो यहां पे लिखा है हमारे हथियार शारीरिक नहीं परंतु किलों को ढा देने के लिए क्या है? बहुत ही शक्तिशाली हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही तगड़े हैं। तो आप इनके ऊपर गौर करें, ध्यान करें। और सबसे बड़ा हथियार मैं बोलने जा रहा हूं, बस उसके ऊपर प्रार्थना कर दूंगा। सबसे बड़ा हथियार हमारा पता क्या है? हम कहीं भी जाएं, कहीं भी जाएं,
किधर भी चले जाएं, मुसीबत में फंस जाएं, बीमारी में फंस जाएं, संकट में फंस जाएं, हमें सारी तरफ से लोग मारने के लिए इकट्ठे हो जाएं, मैं अकेला ही खड़ा हूं, तब भी हम यही कहेंगे, मेरा यीशु जी उठा है और वो मेरे ही साथ है। कितने साथ है? मेरे साथ। क्योंकि 91 में लिखा हुआ, एक तरफ तेरे 1000, दूसरी तरफ 10,000 और 10,000। बोलो, एक तरफ 10,000 और दूसरी तरफ 10,000। हाँ 11,000 लोग तेरे चारों तरफ खड़े रहेंगे, लेकिन मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। मैं किसे बचाऊंगा? ये गारंटी मेरी और आपकी परमेश्वर लेता है और हम उसके साथ चले। आमीन। आमीन। ये हमारा हथियार है। ये क्या है? ये हमारा हथियार है कि हमारी गारंटी उसने ली है कि एक तरफ 1000, 10,000, उसमें से भी नहीं। तो अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि मैंने तुम्हें किसी के हाथ मरवाना है, फिर कोई माई का लाल बचा भी नहीं सकता। तो फिर समर्पण करके चले, फिर कहें खुदा अगर तेरी मर्जी है कि ये लोग मुझे मार दें, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, तो जल्दी से मरवाओ मुझे, क्योंकि जीना तो फायदेमंद, मरना क्या है? लाहेबंद है। पंजाबी जो कहते हैं लाहेबंद है, फटाफट ले लो। मतलब मरने के बाद हम कहां जाएंगे? हमारे खुदा के पास, और वहां जाकर के परमेश्वर की जो आशीष है उसको हम ले लेंगे। आमीन। आमीन। यहां पर भी आशीषें लेते हैं, वहां पर भी। आशीष। और देखो एक और बात, यहां पर हम लेते ही नहीं है, सिर्फ लेके दूसरों को भी देते हैं। आमीन। हालेलुया। लेते भी हैं, दूसरों को भी देते हैं। उनको भी दिलवाते हैं। चंगाई लेते नहीं, चंगाई दिलवाते भी हैं। उसे बताते हैं ऐसे ऐसे कर, तू भी चंगा हो जाएगा। वो जब खुद से करता है वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। सुनने वालों आप भी कर लेना। अगर आपकी संकट में, बीमारी में, परेशानी में जकड़े हुए हो, दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ है, तो यीशु के नाम से डांटना आपको छोड़ के निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर आप विश्वास कर पाओगे कि यीशु ही मात्र एक परमेश्वर है। आपको उसके ऊपर विश्वास हो जाएगा। आमीन। तो याद करना, हम मसीह में क्या है? जिंदा है। और जिंदा लोगों के पास हथियार कौन से हैं? प्रार्थना, वचन, उपवास, और चौथा क्या है? जोर से बोलो, चौथा क्या है? यीशु है हमारे तो बोलो, और जी उठा हुआ यीशु यीशु वो सबसे बड़ा है। कौन सा यीशु? यीशु। हाँ, जो यीशु जी उठा, वो उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उसके नाम से दुष्टात्मा को निकालते हैं, उसके नाम से हम कहते हैं प्रभु जी आने वाला देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो जो सबके पक्ष में सोचे, सबके पक्ष में बातें करे और सबके पक्ष में खुशहाली लेके आए। हम लोग ये प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। उसी यीशु के नाम से, उसी यीशु के नाम से भूत डरते हैं, उसी यीशु के नाम से बीमारियां डरती हैं, उसी के यीशु के नाम में हमारे अंदर शांति आती है, उसी यीशु के नाम में हम तलवार नहीं उठाते हैं। हालेलुया। उसी यीशु के नाम से हम लोग क्या करते हैं? दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। उसी यीशु के नाम से वो में मार रहे होते, हम कहते हैं प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि ये बात हमारे अंदर भरने वाला वो जी उठा हुआ यीशु है। हालेलुया। ये प्रेम भरने वाला वो यीशु है, हमें ऐसा बनाने वाला यीशु है। हालेलुया। क्योंकि उसने खुद क्रूस के ऊपर मेरे और आपके पापों के लिए, संसार के पापों के लिए ये सारी मार खाई। हालेलुया। उफ तक नहीं कहा, और मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा। हम भी उसके साथ जी उठे हैं। जिन्होंने मन फिरा के बपतिस्मा ले लिया है, वो आने वाला है। यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया, फिर से आने वाला है। हमें जल्दी जल्दी लोगों को मसीह के बारे में बताना है, मसीह में लाना है, क्योंकि यीशु दोबारा उसके आने से पहले फटाफट लोगों को ले आए। जब यीशु आए तो उसकी दुल्हन कलीसिया चर्च जो है उसके साथ उठा लिया जाए। हमारा तो ये मिशन है। हमारा ये कोई प्लान नहीं है कि हम यहाँ राज्य करेंगे, हम सबको मसीह बना लेंगे, फिर मसीह राज होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हमारा राज्य ही और है कोई। हालेलुया। हम एक नए राज्य में जाने वाले हैं, वहां पृथ्वी अलग होगी, वहां हमारा यीशु मसीह राजा होगा, और वो ये धरती होगी ही नहीं। बाइबल कहती है ये धरती तो क्या होगी? नाश। ये आसमान क्या हो जाएंगे? एक नया धरती, नया आसमान प्रकट होगा। हालेलुया। यरूशलेम नया आएगा, उसमें हम राज्य करेंगे। हमारा राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें 2 नंबर के प्रधानमंत्री होंगे। हालेलुया। और वो धन्यवाद हो, उसमें प्रधानमंत्री होगा ही नहीं कोई, क्योंकि वो सब कुछ हमारा यीशु मसीह होगा।
और हम 24 घंटे उसकी क्या करेंगे? आराधना। जोर से बोलो, क्या करेंगे? आराधना। हमारा परमेश्वर हमसे आराधना ही मांगता, वहां भूख प्यास नंग पीड़ा बीमार लाचारी नहीं होगी। और आराधना 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 आराधना, जिस काम के लिए उसने हमें सिरजा है वही काम हम करते हैं और करते भी स्वर्ग में जाकर के और ज्यादा करेंगे। तुम नरक में बैठ के देखना, हम आराधना करेंगे। बोलो, हम क्या करेंगे? आराधना। तुम अगर मसीह में नहीं आए तो तुम नरक में बैठ के देखना, वहां से चिल्लाना, ओए ये बंदा बोल रहा था और मुझे बुला लो, तब बोलेंगे टाइम निकल गया भैया, बड़ा बोला तुझे तौबा कर ले, तू नहीं माना, तुम्हें काटने पर था, मारने पर था, गाली देता था, तू हमें चर्च तोड़ रहा था, तू हमारे सारे लोगों को मार रहा था, अब तेरा समय है वहां जलने का और हम यहां परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन हमारी प्रार्थना यही है, कहीं तू उस आग में न चला जाए। हालेलुया। एक भी मसीह की ये इच्छा नहीं कोई नरक में जाए, क्योंकि नरक परमेश्वर ने इंसानों के लिए बनाया नहीं है, चाहे वो मसीह में है चाहे नहीं है। जैसे एक सूरज निकलता है सुबह, वो पापियों के ऊपर धर्मियों के ऊपर रोशनी देता है, ऐसे ही मेरे अजीजों हम मसीह लोग आप लोगों के लिए दुआ करते हैं कहीं आप नरक में न चले जाओ। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, परमेश्वर की कलीसिया में चर्च में शामिल हो जाओ। यीशु आने वाला है, आने से पहले अपने आप को तैयार करो। आइए आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस लॉर्ड। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें सिखाया है। आत्मा हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे सब के ऊपर दया करके बरकत और आशीष दे पिता परमेश्वर, मेरे भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, जो खुदावंदा कल परसों नरसों तरसों आने वाले हफ्ते में, महीने में, साल में इस यूट्यूब के द्वारा सुनेंगे, उनको सबको यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, उन सबको यीशु के नाम से मांग लेता हूं, वो नरक से बच जाए, वो पीड़ा से बच जाए, वो दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। और जो बीमार लाचार हैं उन्हें छोड़ के दुष्ट आत्मा निकल जाए, क्योंकि खुदावंदा हमारा हथियार प्रार्थना है, हमारा हथियार उपवास है, हमारा हथियार प्रभु का वचन है, हमारा हथियार यीशु का नाम है, यीशु है। हालेलुया। उसी यीशु के नाम से ये सारा संसार यीशु में आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरे आने से पहले करोड़ों खरबों लोग तुझे ग्रहण करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, प्रभु जी बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, तेरी इच्छा तेरी मर्जी पूरी हो। खुदा इस घर के लिए प्रार्थना कर रहे जहां पे तेरी आराधना कर रहे, इन सबको बड़ी आशीष दे, इनके घरों में, परिवारों में तेरी बड़ी बरकत को मांगते हैं। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी प्रार्थना करता प्रभु जितने लोग आए हैं भाई बहन, उनके ऊपर भी दया कर, बाकी का सारा समय तक में सौंपते हैं। प्रभु जी हमें लेकर के आए, जाते समय अगुवाई करे, सहायता करे, जो बीमार लाचार है उन्हें छू ले, उनकी सोचों, बीमारों की सोचों को छू ले, उनके ख्यालों को छू ले, उनके विचारों को छू ले, उनकी सोचों, विचारों, ख्यालों के, भावनाओं के ऊपर प्रभु यीशु का लहू लगाता हूं, क्योंकि लहू में शिफा है, चंगाई है, छुटकारा है और हमारे पापों की क्षमा है। वो लहू लगा लेता हूं, क्योंकि दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है इनके ऊपर। ग्लोरी हालेलुया। ये छुड़ाए हुए लोग हैं, ये जीवित लोग हैं, जिंदा लोग हैं, और मुर्दों का इनके ऊपर कोई हक नहीं है। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो। धन्यवाद करता हूं, सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना पिता आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता नासरी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जोर से बोलेंगे आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा की संगति और स्वागत हम सबके साथ, दुनिया में, संसार में जितने मसीह लोग रहते हैं उन सब के साथ मिलकर यीशु के अंत तक होता रहे। आमीन। खुदा सबको बरकत दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन।